شہرکارت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گیس بحران سنگین ہونے لگا۔ صورتحال سے صنعتوں کا پہیہ جام اور صنعتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے وسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وسیم۔ جی بالکل، موسم سرد ہوتے کے ساتھ ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں گیس بحران جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف گھریلو صارفین پریشان ہیں، تو وہیں جو صنعتکار ہیں ان کے لیے بھی صنعتیں چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر افتخار احمد شیخ، اسے جانتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو گیس کی پوزیشن ہے وہ ناپائیدار ہوئی ہے۔ ابھی ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، کل ہی میں نے دیکھا ہے، اس کے اندر 2 دن کے لیے انہوں نے گیس بند کر دی ہے انڈسٹری کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 دن کی انڈسٹری کی گیس بند ہونے کا مطلب ہے کہ تقریباً اگر آپ ویک کے پورا لگائیں تو 28% گیس بند ہوتی ہے، اور 12-13% جو ہے ہمارے ریونیو میں ایکسپورٹ میں اس کا خسارہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انڈسٹری کو گیس نہیں دی جا رہی، 2 دن بند کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کام اور بھی کیا ہوا ہے کہ اس کا پریشر نہیں دے رہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو گیس کی ڈسٹریبیوشن کا فرق آ جاتا ہے۔ بلوچستان کو گیس دی جاتی ہے اور سندھ میں دی جاتی ہے تاکہ سردی میں یہ جو ہے ریزیڈنٹس کو جو ہے اس کی تکلیف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ کیا کرتے ہیں کہ بجلی کی جو ہے نا ایک کھیپ دی جاتی ہے، اور بجلی کی کھیپ جب دیتے ہیں تو جتنی بھی ایکسیس بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ایک یونٹ ہمارے ساتھ طے کیا جاتا ہے، جو پچھلی دفعہ 18 روپے تھا، 20 روپے ہم سے سیٹل کیا گیا تھا کہ اس دفعہ ہم آپ کو سردیوں کے 4 مہینے کی کھیپ دیں گے، جو اتنی ایکسیس استعمال بجلی کرے گا وہ 20 روپیز کے حساب سے ہم آپ کو چارج کریں گے۔ لیکن اس سال بھی انہوں نے وہ کھیپ ہمیں نہیں دی۔ ہم نے پہلے بھی ان سے بات کی تھی، اور ہمارا بھی یہی موٹیو تھا کہ جی انڈسٹری کو پرائرٹی دی جائے، انڈسٹری کو گیس آپ دیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ انڈسٹری کا پہیہ جب چلے گا تو ان امپلائمنٹ نہیں بڑھے گی، انڈسٹری چلتی رہے گی، معیشت بہتر ہوگی۔ بالکل، یہ تھے افتخار احمد شیخ، جن کا کہنا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ صنعتوں کو جو ہے وہ ایک تو گیس فراہم نہیں کی جا رہی، دوسری جانب گیس پریشر بھی انتہائی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور اس صورتحال پہ صنعتیں چلانا مشکل ہو گیا صنعت کاروں کے لیے۔ افتخار احمد شیخ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صنعتوں کو گیس فراہم کی جائے تاکہ صنعتی پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے اور معیشت جو ہے وہ رہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کر۔ انتخابی شیڈول کا اعلان ہوتے ہی ایم کیو ایم نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ الیکشن سیل کے ذمہ داران اور کارکنان کو مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ مزید اس پر بات کریں گے شعیب مختار سے۔ جی شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ انتخابی شیڈول کا اعلان ہوتے ہی ایم کیو ایم نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ الیکشن سیل کے ذمہ داران اور کارکنان کو مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے، شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، انتخابی شیڈول کا اعلان ہوتے ہی ایم کیو ایم نے تیاریاں تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم نے آج جو ہے الیکشن سیل کے ذمہ داران و کارکنان کو مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس طلب کر لیا ہے۔ الیکشن سیل کے ذمہ داران، اراکین رابطہ کمیٹی اور سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے ذمہ داران کا مشترکہ اجلاس جو ہے شام 4 بجے جو ہے شروع ہوگا۔ اس اجلاس میں گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے تمام انچارجز جو ہے شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس میں مختلف حلقوں سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی درخواستوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ اہم ترین اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں سے انتخابی اتحاد سے متعلق بھی مختلف امور پر مشاورت کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل قوال امجد صابری مرحوم کے نام سے منسوب سرشاہ سلمان روڈ کے غریب آباد انڈر پاس کی تزئین و آرائش میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر مکمل کر لی گئی ہے۔ امجد صابری نے سابق چیئرمین ضلع وسطی ریحان ہاشمی کے ہمراہ غریب آباد انڈر پاس کی تزئین و آرائش بھی کی تھی۔ مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ بالکل، زندہ قوموں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور قوال گھرانے سے تعلق رکھنے والے غلام فرید صابری قوال کے صاحبزادے امجد صابری، جو کہ 40 سال کے عمر ان کی تھی، قوال اور نعت خواں تھے،
22 जून 2016 में फायरिंग करके इन्हें कत्ल कर दिया गया था। साबिक जो इंतज़ामिया है 11 जून 2017 में उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी ने गरीबाबाद अंडरपास को बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मरहूम कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे अमजद साबरी के नाम से मंसूब करने की एक दरख्वास्त की थी KMC के इंतज़ामिया से, और उसके नतीजे में गुज़िश्ता बरस एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इसकी मंजूरी दी थी और इसको गरीबाबाद अंडरपास को जो है वो मंसूब कर दिया गया था शहीद अमजद साबरी के नाम से। अमजद साबरी शहीद को कत्ल भी जो है वो सरशाद सुलेमान रोड पर ही गरीबाबाद अंडरपास के करीब ही किया गया था। बताता चलूँ आपको कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद इसकी रेनोवेशन का काम किया गया, इसके इतराफ़ में टाइल लगाए गए और इसके साथ साथ एक पोर्ट्रेट भी आमेज़ा कर दिया गया है अमजद साबरी मरहूम का। और शहरियों से मेयर कराची ने, इस वक्त जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने दरख्वास्त भी की थी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपने एक खिताब में कि इसको साफ़ सुथरा रखा जाए और इसको शहीद के नाम से मंसूब किया गया अंडरपास को। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 का ये अहम तरीन रोड है जिसका ये अंडरपास है, गरीबाबाद अंडरपास। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन अंडरपास है और माजी में ये अंडरपास जो है अपनी तामीर के बाद उजड़ा हुआ था, इसकी रेनोवेशन कंप्लीट कर ली गई है और अमजद साबरी के नाम से मंसूब करके इसकी तज़ीन व आराइश जो है वो तकरीबन अपने अख्ताम को जो है वो पहुँचने वाली है। शहरियों से मुतालबा ये किया गया कि इसको साफ़ सुथरा रखा जाए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जा बजा जो टाइल लगाए गए हैं तराफ की दीवारों पर, वहाँ पर पान की पिचकारियाँ मौजूद हैं और ये जो अंडरपास है वो एक मरतबा फिर जो है वो अपनी तज़ीन व आराइश को मुकम्मल किए बग़ैर ही जो है वो हमें जा बजा यहाँ पे पान की पीके दिखाई देती हैं। शहरियों से मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से भी, और बाशऊर शहरी भी ये मुतालबा करते हैं कि इस अंडरपास को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाए क्योंकि ये एक शहीद के नाम से मंसूब कर दिया गया है। जी, बल्दिया टाउन के इलाके आबदाबाद में भत्ते के तनाज़े पर बचत बाज़ार बंद कर दिया गया। बाज़ार इंतज़ामिया का कहना है कि 30,000 रुपये भत्ता मांगा जा रहा है। बाज़ार की बंदिश पर इलाका मकीन एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आयमा खान अपडेट करेंगी। ये टाउन आबदाबाद का इलाका है और यहाँ पे बचत बाज़ार जो है वो लगाया जाता था, जिस पर टाउन नाजिम की जानिब से यहाँ पे जो बाज़ार लगाने वाले अफराद हैं उनसे जो है वो 30,000 रुपये हफ्तावार जो है वो मांगा जा रहा है। उस पर जो है यहाँ के जो बाज़ार लगाने वाले अफराद थे उन्होंने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हम जो है वो हफ्तावार 30,000 रुपये नहीं दे सकते। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एहतजाज के शुरा मौजूद हैं। बताइएगा, ये आप लोगों से पहले कितने पैसे लिए जाते थे बाज़ार लगाने के और अब जो है वो कितने ले रहे हैं? ये बहुत पुराना बाज़ार लग रहा है। पहले भी टाउन था, अभी भी टाउन है, मगर पहले इतना निज़ाम नहीं था। अभी जितना उन लोगों ने लगाया हुआ है, ये गरीब आबादी है, गरीब आबादी के लिए ये बाज़ार लाजमी था। अभी ये 5-6 हफ्ते हो गए ये बंद हो गया है। समझ गया, टाउन वाले हमारों को लोग तंग करते हैं और ये इलाका गरीब, न ट्रांसपोर्ट है, न कोई ये न रूट है, इसके ऊपर रूट मूड नहीं है। 1 घंटे के बाद एक मोटरसाइकिल गुजरता है। ये सारा इलाके के लोग खड़े हुए हैं। बाज़ार जब से नहीं लग रहे, ये लोग हमारे लेडीज़ 24 में कहाँ ख्वार होके आते हैं। समझ गया, लिहाजा हम लोगों का अपील है, क्या नाम है, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, कि इस चीज़ को देखा जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना एहतजाज के शुरा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि हमारी सहूलत के लिए यहाँ पे जो है वो ये बचत बाज़ार लगाया जाता था, लेकिन अब जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से इस बचत बाज़ार को बंद कर दिया गया और इलाके में जो है वो कोई और बाज़ार, बचत बाज़ार मौजूद नहीं है जहाँ से जाके जो है वो सामान खरीद सकें हम। चूँकि ये इलाका जो है वो एक पसमानदा कच्ची आबादी का इलाका है, लेकिन यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए कोई बचत बाज़ार नहीं था। एक ही बचत बाज़ार लगाया जा, जो कि वो भी इंतज़ामिया की जानिब से अब बंद कर दिया गया है। जी, एक्सपो सेंटर में सजा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला चौथे रोज़ भी जारी है। अदबी मेले में चौथे रोज़ शायकीन कुतुब का जमे गफ़ीर उमड़ आया है। मज़ीद बात करेंगे, नम्रा रियासत वहाँ पर मौजूद हैं। जी नम्रा।
कुतुब मेला अपने आबो ताब के साथ चौथे रोज़ भी है और चौथे रोज़ सुबह से ही अब तक जो है वो खासा रश आवाम का यहाँ पर देखने आ रहे हैं। शायकीन कुतुब की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास उसमें छोटे बच्चे हों, नौजवान नस्ल हों या बुज़ुर्ग अफराद हो, तमाम ही इस कुतुब मेले में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुंतज़मीन के मुताबिक कि अब तक 3 लाख से ज़ायद लोग इस कुतुब मेले का हिस्सा बन चुके हैं और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात भी इस कुतुब मेले में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं। न सिर्फ यहाँ का दौरा या विज़िट कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ किताबों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चों की खासी मुनफरिद किताबें और यहाँ पर स्टॉल्स देखने में आए हैं जिसमें बच्चे दिलचस्पी भी ले रहे हैं और न सिर्फ उनको देख कर वो शौक़ पूरा करें बल्कि उनको ख़रीद भी रहे हैं। उनकी मालूमात के लिए रिसाले, जराइद, मैगज़ीन्स और कहानियों की ऐसी मुनफरिद किताबें मौजूद हैं जो मालूमाती होने के साथ साथ उनके सिलेबस का भी हिस्सा दिखाई दे रही है। इसी हवाले से बुज़ुर्ग हों और नौजवान नस्ल हो, उनके हिसाब से भी इस किस्म की तमाम किताबें मौजूद हैं। इसी हवाले से आज तालीमी शोबे से वाबस्ता हमारे साथ चेयरमैन फेडरेशन ऑफ कराची के प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के इंजीनियर अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये भी आज इस कुतुब मेले का हिस्सा बने हैं तो किस तरह से देखते हैं। जी सर बताइएगा, आप इस कुतुब मेले का हिस्सा हैं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ हैं, कैसे देख रहे हैं इस कुतुब मेले को और कौन कौन सी किताबें पढ़ने के शौक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि 18वां बुक फेयर कराची में इस साल मुनक्किद किया गया है। लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दौरे हाज़िर में डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दीगर टैबलेट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाई की तरफ काफ़ी स्कूल्स जा रहे हैं। बुक्स की तरफ थोड़ी सी कमी का रुझान है। ये बुक फेयर ही वो वाहिद हमारे पास हल निकलता है, पूरे पाकिस्तान भर से पब्लिशर्स, बुक सेलर्स आते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है द पाकिस्तान बुक सेलर्स पब्लिशर एसोसिएशंस की कि वो ये इसका इनेकाद करती है हर साल और लाखों लोगों में हर साल इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर में बुक्स के करीब आने के लिए बच्चों को, स्कूल्स के बच्चे, टीचर, सब वो हम रुख करके लेकर आते हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ आपको देखने को नज़र आ रही होंगी कि अपने बच्चों समेत पूरी फैमिलीज़ आती हैं, किताबों को करीब से देखती हैं और वहाँ जो लोग खड़े होते हैं वो उनको गाइड करते हैं तरीके के साथ कि इन बुक्स में मज़ीद किन चीज़ों की मॉडिफिकेशन की गई है। मैं समझता हूँ कि किताबों आने के लिए ये एक वाहिद बुक फेयर है जो हर साल होता है। हम स्कूल्स के जितने प्रिंसिपल हजरात हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, सब जाते हैं उस स्टॉल्स के विज़िट करते हैं और देखते हैं। उनको गाइड भी किया जाता है, बताया भी जाता है कि किन बुक्स में मज़ीद मॉडिफिकेशन की गई है, करिकुलम में किन चीज़ों में इजाफा किया गया है। तो एक बहुत अच्छा इनेकाद है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में ये पूरा एक्सपो के जितने भी हॉल्स हैं, इन पूरे हॉल्स पर मुश्तमिल इंशाल्लाह ये एक बुक फेयर आगे की जानिब बढ़ेगा। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आपने भी देखा कि खासा रश है, बच्चे बड़े सभी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी इस सदी को कहा जा रहा है और इस बुक मेले के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा वाकई में है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग अब यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, समझदार लोग आ रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं। हमारे स्कूल्स के जितने प्रिंसिपल हजरात अपनी टीम के साथ यहाँ विज़िट करते हैं। इन बुक फेयर से उनको बहुत सारी चीज़ें जो न्यू आई होती हैं हमारे पास किताबों में, उन चीज़ों को देखने को और समझने का मौका मिलता है और पेरेंट्स भी बड़े करीब से आके इन चीज़ों को देखते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किताबों का जो शौक़ है, किताबों की जो लगन है बच्चों की, वो इंशाल्लाह दूर नहीं होंगी। हम सब ने, आपने, मीडिया ने, सब ने इसमें अपना एक रोल अदा कर रहे हैं कि किताबों के करीब ही जाकर वो असल पढ़ाई है जो हमको करीब से देखने को, समझने के लिए मौजूद साबित होती है। अच्छा, इसी किताब मेले में जो है एक हमने चीज़ देखी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के भी कुछ स्टॉल्स मौजूद हैं जो एक बड़े जदीद दौर के लिए एक ज़रूरी भी है, उनके हवाले से क्या समझते? यकीनी तौर पर नेशनली और इंटरनेशनली जब हमारे बच्चे स्कूल्स, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन से पढ़कर अब्रॉड जाते हैं तो यकीनी तौर पर इन चीज़ों की जिद्दत जो दीगर ममालिक में है, तो साथ साथ उन चीज़ों को समझना आईटी के हवाले से बहुत ज़रूरी है। जो स्कूल इन कामों में इनिशिएटिव ले रहे हैं वो बुक्स के साथ साथ इन चीज़ों का तकाजा भी कर रहे हैं। आप अगर स्कूल विज़िट करेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको देखने को और समझने को मैसर होंगी कि दौरे हाजिर के साथ वो इलाकाई वाइज, फिर नेशनली और फिर इंटरनेशनली जो मॉडिफिकेशन है, जो चीज़ें समझने के लिए हमें ज़रूरी है, हमारे बच्चों को ज़रूरी है, तो वो साथ साथ लेकर इनको चल रहे होते हैं ताकि हमारे बच्चे जब बाहर ममालिक में जाएँ तो वहाँ पर इन चीज़ों की अफादियत
جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، وہ خود بھی مستفید ہوں اور وہاں پر ان کو پچھتانا نہ پڑے، پاکستان کا نام روشن کریں۔ پاکستان کے جتنے دور دراز علاقوں سے لوگ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں اس جدید دور کے تقاضوں سے میسر جو ہمارے آئی ٹی کے حوالے سے ٹیبلٹس ہیں، ان کے تھرو جو الیکٹرانک ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں اسکولز میں، کالجز میں، تو ان کو ضرور ہم سب کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے اور ہم کر بھی رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ اچھا، آپ اپنے حوالے سے بتائیں، آپ کون سی کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں؟ میں تو یقینی طور پر مختلف ہمارے پاس پبلشرز آتے ہیں، آکسفورڈ پبلشرز ہیں جو ایک اس وقت پورے پاکستان میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی مطلب بڑا دیکھا جاتا ہے، لیکن دیگر پبلشرز نے بھی اب بہت اچھا کام شروع کر دیا ہے، جس میں مثال کے طور پر کینٹب پبلشرز ہیں، گابا ہے، بہت سارے آفاق ہیں اور بہت سارے پبلشرز ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ جاوید پبلشر ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر سبجیکٹ کی، ہر ٹاپک کی اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ تاکہ ٹیچرز کو اور بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہر ٹاپک کی ویڈیو بنانا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، مطلب پورے چیپٹر کے آپ کو ملیں گے، پوری بکس کی ان کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کوسچن آنسرز ملیں گے، پریلمز پیپر بنانے کا انہوں نے ایک مواد پرووائڈ کیا ہے، مڈ ٹرم کے، اینول ٹرم کے۔ تو بہت سارے پبلشر اب اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ضروری ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کے لیے بھی آسانی ہو، پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہو، بچوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ یقینی طور پر عصر حاضر کے تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ وقت کی ضرورت تو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اب کام کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن جو کتابوں کی آخری صدی کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر اس بک فیئر کا معائنہ کریں یا جائزہ لیں تو اس وقت جو شہریوں کی تعداد ہے یا شائقین کتب جو ہے وہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں، اس حساب سے تو لگتا ہے کہ کتابوں سے محبت کرنے والے جو ہیں آج بھی زندہ ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ دیکھی گئی کہ ہر عمر کے افراد جو ہے یہاں پہ آ رہے ہیں، نہ صرف ہر عمر کے افراد، ہر شعبے سے وابستہ افراد، اور ہر شعبے کے لیے الگ جو ہے وہ کتابیں میسر ہیں، وہ چاہے صحت کے شعبے سے ہوں، کھیل کے شعبے سے ہوں یا دیگر شعبہ جات سے، تمام کے الگ الگ سٹالز ہیں، الگ الگ کتابیں موجود ہیں، تمام کے پڑھنے والے جو ہیں وہ وہاں کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں کتابیں خرید رہے ہیں۔ اور جو نوجوان نسل ہے، جو کچھ ایسے جو کتابوں سے دور ہیں، وہ یہاں آ کر نئی کتابوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں کہ ہر کتاب جو کوئی نہ کوئی کتاب وہ لازمی یہاں سے لے کر جائیں، اس کو پڑھیں، اس کے بارے میں معلومات لیں۔ اور کچھ ایسے سٹالز بھی ہم نے دیکھے ہیں جو قدیمی کتابیں جہاں پر موجود ہیں، پرانی کتابیں، ایسی کتابیں جو عام مارکیٹ میں اس دوران جو ہے وہ میسر نہیں ہیں، وہ اس کتب میلے میں یہاں پر دستیاب کی گئی ہیں تاکہ بآسانی ہر شخص خرید سکے۔ اور ان کی قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قیمتیں جو ہیں وہ انتہائی مناسب ہیں۔ مختلف سٹالز پر جو ہے 20، 30 اور 50% تک رعایت دی گئی ہے، خصوصی طور پر طلبہ کو، کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جو ہے کتابیں خریدیں، انہیں پڑھیں، ان کے بارے میں معلومات لیں۔ اسی حوالے سے پرانی کتابوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اسی لحاظ سے لگائی گئی ہیں تاکہ جو کتابیں عام مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں وہ اس مارکیٹ میں ان کو میسر آ سکے اور وہ کتابیں زیادہ سے زیادہ خرید سکیں۔ اور جب ہم یہاں پہ اسٹال مالکان سے جب بات کی گئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ رعایت دینے کا مقصد ہی خصوصی طور پر یہ تھا کہ زیادہ نہیں تو ایک کتاب لازمی ہر گھر میں جائے، ٹھیک پہنچے۔ ہے، نمرہ ریاست ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں کتب میلہ جاری ہے۔ کتب میلے میں ایک ایسا سٹال بھی موجود ہے جہاں بچوں کی تربیت، کردار سازی اور تجوید قرآن اور مشتمل کتابیں رکھی گئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں خورشید رحمانی سے۔ موجود ہیں کراچی کے ایکسپو سینٹر میں، جہاں ابھی 18واں جو ہے کتب میلہ جاری ہے اور آج اتوار کا روز ہے، چھٹی کا دن ہے اور بچے، بچیاں، نوجوان سبھی آج اس کتب میلے کا رخ کیے ہوئے ہیں اپنے والدین کے ہمراہ اور اپنی من پسند کتابیں خرید رہے ہیں۔ ہم آج اب آپ کو ایک ایسا اسٹال دکھائیں گے جس پر بچے خصوصاً جو ہے وہ ان کی توجہ کا مرکز ہے، یہ اسٹال جس میں بچے کی کردار سازی، جو نوخیز بچے ہیں ان کی کردار سازی کے حوالے سے ایک ایسا اسٹال ہے جس میں ہم آپ کو آپ سے کچھ دیر بعد یہ دکھائیں گے۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے یہ اسٹال متعارف کروایا ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کی جو تعلیم اور تربیت اور ان کی کردار سازی کے حوالے سے جس میں انہوں نے کتابیں تخلیق کی ہیں وہ انتہائی شاندار ہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ ناظرین کو دکھائیں کہ ناظرہ قرآن آسان تجویز کے ساتھ انہوں نے رکھا ہے اور اس میں اس کے علاوہ اور بھی ناظرہ قرآن کے علاوہ قرآن پڑھیں آسان تجویز کے ساتھ انہوں نے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ فہم القرآن کی کتابیں انہوں نے تخلیق کی ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت کی کہانیاں سب سے جو
पुरअसर और पुरमग़ज़ जो है वो बच्चों के लिए सीरत की कहानियाँ मुरतब की हैं इन्होंने। रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार महबूब, उनसे हम जानेंगे कि आया ये जो आइडिया है ये इनके पास कैसे आया और मज़ीद इनकी क्या प्लानिंग्स हैं बच्चों के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया सिटी 21 को वक्त देने का। ये आइडिया कैसे आया और उसमें मज़ीद अब क्या करने जा रहे हैं बच्चों की किरदार साजी के बारे में? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के सेक्टर में तो एक बड़ा काम हो रहा है। हमने साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी पूरी जनरेशन इस पे परेशान है कि जो हम अपनी नई नस्ल को जिस अक़दार के साथ देखना चाहते थे वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ऐसा खला था कि वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और अच्छा, दूसरी तरफ परेशानी क्या है कि पाकिस्तान इतने बहरानों से दरपेश हैं, इसको तवानाई का बहरान है, मुआशी बहरान है। इन सारे बहरानों का जब आप जायज़ा लेते हैं तो उसकी बुनियाद में जो आपको बहरान नज़र आता है वो किरदार का बहरान है। उस बहरान ने ये सारे बहरान जन्म दिए हैं। उसके लिए हमने ये तय किया कि हम अपनी नई नस्ल की किरदार साजी ऐसे करें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाए, और उसी के लिए ये करैक्टर बिल्डिंग का, कुरान एजुकेशन का, ताकि वो अपनी वैल्यूज़ के साथ जुड़ सकें और रोल मॉडल्स बच्चों को मिल सकें। ना सिर्फ ये कि वो किरदार बल्कि सलाहियत और सालिहियत दोनों के लेवल पे वो लीडरशिप के मकाम पे पहुँच सके। ये थे अम्मार महबूब जो हमसे बच्चों की जो किरदार साजी है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बच्चों की किरदार साजी के हवाले से जो भी खिदमत हो सकती है ये स्कूल में असातिज़ा की ट्रेनिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, और बच्चों का तख्लीकी अदब है, बच्चों की किरदार साजी है, उस पर ये काम कर रहे हैं। और इनसे जो टीचर्स हैं वो रब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिला मुआवजा उनकी ट्रेनिंग करवाने में भरपूर उनकी मामलत करेंगे। जी, बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाने की ठान ली है। मज़ीद बताएंगे जुनैद जावेद। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम करना जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस जानिब बच्चों के लिए जो है वो दुआएं इस दीवार के ऊपर जो है वो लिखी गई हैं। कौमी तराना जो है वो तहरीर किया गया है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉक जो है वो बनाया गया है। इसके साथ साथ बेशुमार ऐसी तस्वीर है जिसको देखकर जो है वो यहाँ से गुजरने वाले खुश हों, उनको अच्छा लगे, एक फीलिंग आए, अच्छी फीलिंग आए, इसलिए जो है वो इस वक्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है एक पेंटर बल्दिया उज़्मा कराची का लोगो पेंट कर रहा है, क्योंकि सारा काम जो है वो KMC की जानिब से करवाया जा रहा है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची हैं, उनकी हिदायत के ऊपर किया जा रहा है। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान, टोटल 12 से ज़ायद मुकामात पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंटिंग्स हो रही हैं इसी रोड के ऊपर, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जी कराची KMC वालों ने करवा रहे हैं और अपना मेयर कराची के तावन से, और ये गोभी पेंट वाले करवा रहे हैं, यानी कि गोभी पेंट वाले करवा रहे हैं। यहाँ पे 2 इंजन बनाए हैं गाड़ियों के, फिर उसके बाद ईदी की तस्वीर बनाई है, फिर उसके बाद ये फूल पत्तियाँ बनाई हैं। ये माशाल्लाह सारा का सारा तकरीबन 10-15 बंदे जो लगे हुए थे। फिर उसके बाद जो है कि ये समझो कि पूरा का पूरा रोड एकदम चमचम हो गया है। लेकिन बात ये है कि तावन अगर गवर्नमेंट करती है तो हम लोग तो पूरी कराची को माशाल्लाह साफ़ सुथरा बना देंगे। आवाम को देखते हैं हम, आवाम जो है चलते फिरते पिचकारी मार देती है पान की, वो तो इसको उनको क्या कहना चाहते हैं? ये आवाम को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि अब ये हम लोग सफाई करते हैं, ऊपर आप पान की पीप मारते हैं, आपको कम से कम ये तो ख्याल करना चाहिए कि ये सफाई है तो हमारा क्या फ़ायदा है, हमने साफ़ करना और आपने ऊपर पीपे मारनी पान की, गुटखा खाना है। अगर आप खा रहे हैं तो कम से कम एक साइड पे तो आप थूक सकते हैं ना, कोई ये ज़रूरी थोड़ा कि आपने दीवारों के ऊपर ही फेंकना है। जी बिल्कुल, सफाई निस्फ ईमान है और इस पर जो है वो हमारा ईमान भी कायम है। लोगों को न सिर्फ अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए बल्कि शहर की दीवारों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। शहर के अंदर बहुत सारे मुकामात, बल्कि हर रोड पर ही हम देखते हैं कि डस्टबिन जो है वो नज़र आते हैं। अगर कोई शख्स पान खा रहा है तो उसकी पिचकारी दीवार के ऊपर मारने से बेहतर है कि डस्टबिन के अंदर जो है वो फेंके, ताकि शहर का हुस्न जो है वो बरकरार रहे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स इस वक्त की जा रही हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि बंदर बनाया जा रहा है, शेर बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी जो डिज़ाइनिंग्स हैं वो बनाई जा रही हैं ताकि शहर की दीवारों पर जो है वो खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। शहर के पाकिस्तान नेवी शूटिंग रेंज में 7वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शूटिंग चैम्पियनशिप शुरू हो गई है। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल।
PN शूटिंग रेंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर 7वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शूटिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ हो चुका है और अब से कुछ देर पहले कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम साहब ने इस इवेंट का इफ्ताह किया। हमारे साथ PNS बहादुर के डिप्टी कमांडेंट फहद अनवर मलिक साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करें। सर, किस तरह देख रहे हैं, कैसा ज़बरदस्त इवेंट है कि मुल्क भर से टीमें आई हुई, खिलाड़ी आए हुए शूटिंग के लिए एक्शन में मौजूद हैं यहाँ पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी काफ़ी सालों से डिफरेंट खेलों के फ़रोग़ के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, तो इसी तर्ज़ अमल पे शूटिंग के लिए भी पाकिस्तान नेवी ने हर एक साल छोड़ के एक साल ये इवेंट कराती है, जिसमें मुल्क से काफ़ी टीमों की पार्टिसिपेशन होती है। और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इस पार्टिसिपेशन से फिर हम नेशनल टैलेंट निकालते हैं, जो कि आगे ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। रिस्पांस कैसा आया है मुख्तलिफ टीमों की तरफ से, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, रेंजर्स और मुख्तलिफ सूबों की टीमें भी शामिल हैं इस इवेंट में? जी माशाल्लाह, इस दफ़ा भी पिछली दफ़ा की तरह रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। जैसे कि आपने देखा होगा, HEC की टीम भी इस दफ़ा शामिल है। यंग लड़के लड़कियां हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है, इन्हीं ने पाकिस्तान को आगे जाके नाम रोशन करना है। इसी तरह तमाम प्रोविंसेस की टीम भी इसमें शमूलियत हासिल कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी रिस्पांस जो है वो पूरे मुल्क से बहुत अच्छा रहा है। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि कैप्टन फहद अनवर मलिक साहब बताया थे कि ज़बरदस्त इवेंट है और एक रिस्पांस बहुत अच्छा है। पूरे मुल्क के खिलाड़ी जब कराची में जमा होंगे, उनकी दोस्तियाँ ही बढ़ेंगी और उनकी ख्वाहिश होगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें ताकि अपने इदारे का भी नाम रोशन करें।